Welcome to weekly forecast of Nifty top 10 stocks according to the weightages and indexes like Nifty, Bank Nifty, Gold, Silver, Bitcoin, USD INR, and crude oil. What is the possible direction for the next week? So we begin with the gold. आपको यहाँ पे जो है रेजिस्टेंस है एट द लेवल ऑफ 2080. तो लास्ट वीक हमने डिस्कस किया था कि एटलीस्ट इट विल गो लिटिल बिट अपर टुवर्ड्स 2060 और 2070. So last week we were on the buy because of this straight move upside and breaking the trend line. So consolidated and we were expecting it to go towards 2070, but it did not break and it came down and uh, closed below the trend line. So now what is the possible direction for the next week? Okay. So I just moved this trend line to here now, since this is my recent or present trend resistance. So it is inside the channel now. So it may go a little bit up, but if you compare this fall, if it is a slower, okay, we may see one fall before it can go any further up or further up. Okay. So I expect in the gold like a little bit upper side and then one fall before it can go any further up or further down. So expecting down move, plan your trade towards selling in case of gold. Okay, it can go a little bit upper towards 2040 or 2050 and may face a resistance and come down once again before it can go any further up. So look for sell setup in case of gold now, not to buy. Silver. Yeah, it is near this A, B, C, D. I'm expecting a triangle or expecting triangle here. If I see this faster move compared to this slower move, I can expect one up move before it can go any further down. So in case of silver, I would suggest look for buy at least like 23 and further if it goes a little bit upward towards 24. So in the case of silver, there is no change. Look for buy setup, not to sell as of now. If it comes a little bit down also, you can plan like if it goes inside the channel, we can plan for buy setup in silver. Crude. Structural, nothing much has changed in case of crude oil. I see only this part. We may see one down before it can go any further up or further down in case of crude oil. Okay. So we may see one fall, like little towards this or at least to this. This is a simple a B kind of a structure. See if it is slower, then come to the bottom that is of 70 or near 69 or 70 level. Okay. Then we may see one up. Or if further slides down and not coming inside the channel or above 69, we may see a little bit down, then up. So presently plan for the downside, then look for the buy in case of crude oil. West China. Okay. Here also structurally hasn't changed much, but if I see this earlier, we were expecting a wedge like a pattern and we may fall towards downside, but it is slower one. You can see here, the structure is like this. So most of the time, this structure will like do once again and go up. So now you can look for little sell towards 82. Then we may get one up from the level 82.60 and 82.40 for 83 and 84 once again. So look for sell, then buy in case of USD INR. Bitcoin.
we were in the sell in case of Bitcoin. So earlier we discussed this, like here we may get some consolidation and one fall. You can see here that there is a consolidation, but below the this area or resistance zone. Then it fell once again, right? It continued to fall again. Here it took a support from previous range. So I'll just remove the areas and we'll check once again. So this is the low area. There won't be the one single line. You can mark a zone that will be helping you uh, to mark your supply zone and demand zone or support zone or resistance zone. Okay. Fine. From the top, if I'd rather. So if I take internal structures, it's 1, 2, 3, 4, and 5. Whenever there is any structure ending in three waves, so there is a chances of some reversal before it can go any further up or further down. So here I'll consider time too. If I take this as a low and high, I have a time before, like you can see here, time that is 22 January 2024, means Monday or Tuesday. If it is like not going very sharp to the upside, let's say this simple structure will now do kind of ABC for the upside. Like if it is slower, then again we see some resistance here and we may fall one more time in case of Bitcoin. So look here for buy setup because this is a sharper recovery towards upside. Then for against this, we may get this simple A, B, C kind of a structure, means one up, consolidation, and one up. This is one up, consolidation, one up will be there. And then you can see here, there is one down, up, and one more down. Okay, simple structure you can trade. So look for the buy, then sell in case of Bitcoin. Nifty. There was a trend line here. Again, I'm making a zone here. You can see after a 2 days gap down and continuous fall, it recovered a little bit, but facing a resistance at the uh, trend line earlier, the trend line of earlier. This is so. What next for the Tuesday? Again, I am consider this fall is a sharper. Okay, I just remove this. If I consider this as a fall from 15 Monday to here, or if I consider this is the low, means started falling from that point towards this. In both cases, this raise is slow. I just consider this and this. You can see here, this downside movement is faster compared to this upside one, right? So most of the time, what will happen? You may get like कुछ नहीं हुआ, discount में मिल रहा है, ले लो अभी, those kinds of things. That's okay, but I'm expecting little bit correction because chart में कोई strength नहीं दिख रहा है, right? You can see. अगर स्ट्रेंथ होता तो या क्या होता, रिवर्सल फास्ट होता, अभी रिकवरी के जैसा होता। जैसे अभी बिटकॉइन में देखा आपने, रिवर्स जो है वो फास्ट है, यहाँ पे रिवर्स जो है वो स्लो। और रिट्रेसमेंट देखे हमने ऊपर से और नीचे तक देख के, यहाँ पे तो कैसा है, यहाँ नियरली 50% के आसपास ये अभी ट्रेड कर, हो सकता है यहाँ से डाउन आए या थोड़ा ऊपर जाके डाउन आ सकता है। ठीक है, अगर इनसाइड द चैनल मूव कर रहा है और वहां से ये फॉल नहीं कर रहा, so we can see some upside movement here. If I see that it goes inside and consolidating there, means we may see 80% and even to the 100%, that वहां पे कैसा होगा फिर अगेन ये फ्लैट स्ट्रक्चर की जैसा बन सकता है।
to 80%, that is 21,961, even to the 22,163, but again ये स्लो ही रहेगा जो अपमूव आया, तो उसके बाद भी हमको एक फॉल देखने को मिल सकता है इनके सब निफ्टी। ओके, so what I am expecting in case of Nifty is like we may see one down. So अगर हम यहाँ से नीचे से ले लेते हैं तो यहाँ पे एक सपोर्ट जोन था इन लोअर टाइम फ्रेम्स, यहाँ पे देखिए ये ब्रेक कर रहा है बट स्लो। आई डोंट सी ओनली प्राइस, आई सी प्राइस एंड टाइम। ओके, ये आउट ट्रेंड लाइन, ठीक है, ऐसी प्राइस एंड टाइम। सो हियर 1 2 3 4 एंड 5, जैसे लास्ट ग्रुप में भी डिस्कस किया था कि ये छोटे 1 2 3 4 5 के जैसा बन रहा है स्ट्रक्चर, तो वहां से भी कैसा होगा, ये दिस विल बी लाइक ए बी एंड सी। ओके, वन नहीं है तो यहाँ से ये हो सकता है ये बी और सी के लिए नीचे जा रहा हूँ, तो दो पॉसिबिलिटीज है, यहाँ से ये थोड़ा ऊपर जाके नीचे आए या डायरेक्टली नीचे आए, तो डिपेंड करता है कि ये कल ट्यूसडे को कहाँ ओपन हो जाता है। अगर सोचिए ये यहाँ पे ओपन हो रहा है तो ये इनसाइड द चैनल है, so we'll get some upside movement towards 21,800 and 21,900. Okay, but ये slow है, I will be looking for the sell setup in these areas like 80% पे, 100% पे, but as of now you can look for the buy setup little bit towards 21,800 and 21,900, but वैसे strength नहीं लग रहा जैसे ये fall है, तो plan your trades according to that. Okay, Bank Nifty, अगर हम अभी बैंक निफ्टी में भी देखते हैं तो वही है कि ये स्लोअर डाउन साइड, मैंने टाइम डाल के रखा है कि एटलीस्ट ये जो टाइम है और ये जो टाइम है, ये टाइम आ रहा है हमको 1 मार्च, 1 मार्च तक अगर हम इस लो इंटैक्ट रहेगा हमारा 42,000 का, तो वी मे सी वन अप। ठीक है, तो अभी अर्ली चार्ट में देखेंगे क्या हो रहा है। सब कुछ निकाल दिया अभी। ये ऊपर से एक सपोर्ट लाइन था, उसी सपोर्ट लाइन को गैप डाउन से फिर ये नीचे आया, अभी फिर यहाँ आपको एक सपोर्ट है इस एरिया और इस एरिया पे। ठीक है, तो यही से ये सपोर्ट ले रहा है, अभी ऊपर से हमें ट्रेंड लाइन आएगा ये एक, और अभी मैं इसको कंसिडर करूंगा तो ये, और भी हम लोग छोटे टाइम फ्रेम में गए तो यहाँ हमें एक सपोर्ट तो दिख सकता है। ठीक है, नेक्स्ट 30 मिनट, ठीक है fine। तो यहाँ पे देखिए ओनली इफ आई एम कंसिडर दिस मूव विद दिस साइडवे मूव, दिस इज लाइक 1 2 3 4 और 5 और ए बी सी डी काइंड ऑफ थिंग, बट यहाँ पे हमें हो सकता है एक डाउन मूव देखने को मिले, फिर हमें एक रिकवरी मिले अप टू दिस चैनल का जो बॉटम है 46,800 के आसपास। अगर गैप अप होता है यहाँ पे तो थोड़ा बहुत रिकवरी मिलके फिर एक डाउन आके फिर एक अप आ सकता है, ठीक है, वीकनेस है अभी बैंक निफ्टी में। तो यहाँ पे अगर आप अपसाइड से डाउन साइड लेते हैं तो 50% के आसपास है, 38% के आसपास, तो 46,000 लग रहा है और 50% 47,000 लग रहा है। हो सकता है थोड़ा बहुत रिकवरी आए बिफोर इट कैन गो फर्दर फॉल, बट अगर शार्प है मूव, वो हम कैसे कंसिडर करना है कि शार्प है या नहीं, तो टाइम आप ले लीजिए, टाइम स्केल देखिए, ये आ रहा है हमें 24 जान, मतलब 2 दिन, मतलब एक्सपायरी के, वीकली एक्सपायरी के थोड़ा नजदीक में अगर हमें ब्रेकआउट देखने को मिला या ये ऊपर जा रहा है 47,000 या 46,690 से, तो हमें एक अप मूव देखने को मिलेगा टिल 47,700, ये इस लेवल तक हमें देखने को मिल सकता है, तो थोड़ा बहुत अप, देन वी कैन सी अ डाउन साइड मूवमेंट इन केस ऑफ बैंक निफ्टी। ओके, now we will go individual stocks।
Bajaj Finance. So as earlier week we discussed this. This is B. यहाँ पे थे हम मैं ये डिस्कस किया कि यहाँ पे देखिए थोड़ा बहुत ऊपर जा सकता है, फिर वी मे सी वन डाउन। बट यहाँ पे एक देखिए वेव थ्योरी या जो नॉर्मल प्राइस एक्शन है या स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट है, ये सब में आप थोड़ा डिफरेंट व्यू रखेंगे। और जो नॉर्मल रिटेल ट्रेडर्स वो नहीं देख पाएंगे। वो मैं बताता हूँ आपको कैसे। यहाँ पे देखिए मोस्टली क्या होता है, जब आप इस हाई को जो ब्रेक कर लेते हैं या जो प्राइस ब्रेक कर लेता है, तो नॉर्मल टेंडेंसी क्या रहेगी, यहाँ पे जो रिसेंट रेजिस्टेंस था या रेजिस्टेंस था वो ब्रेक हुआ और ऊपर ये ट्रेड हो। और इसका आपको साइन भी दिखेगा, गुड पॉजिटिव साइन भी रहेगा कि देखिए यहाँ पे आया, फिर ये सपोर्ट पे आके आपको फिर ये रिकवरी दे रहा है। ठीक है, ये जोन जोन ड्रा कर लेता हूँ मैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको कैसे लगेगा कि हाँ चलो यहाँ से ब्रेकआउट दिया, फिर उसके बाद ये अच्छा सपोर्ट लिया, यहाँ पे डबल बॉटम बना, फिर ऊपर। और आपका सभी का मतलब जो भी यहाँ पे बाई कर लेते हैं, जो उनका स्टॉप लॉस रहेगा यहाँ पे या यहाँ। ठीक है, देखिए यहाँ पे थोड़ा बहुत फिर नीचे आया, यहाँ पे हिट किया, तो चलो उनका लगता है कि चलो अब और एक बार आया, थोड़ा बहुत ऊपर गया, फिर ये एक ही कैंडल में सबका ये जो एसएल से वो लेके गए। तो यहाँ पे आप जो मिस करते हैं वो है कि जो पहला जो ट्रेंड है आपका वो डाउन साइड है, राइट। ये आपका स्ट्रेंथ है, ये आपका डाउन साइड मूव है फर्स्ट, ये अभी अगेंस्ट उसका मूवमेंट है। तो हमें प्लान करना चाहिए कि डाउन साइड। वो क्यों करना चाहिए, क्योंकि अगेंस्ट द ट्रेंड हमें नहीं जाना चाहिए, ट्रेंड इज योर फ्रेंड, राइट। तो यहाँ पे क्या है, डाउन साइड मूव, और आप है अभी एक डाउन साइड मूव आपको आ सकता है। तो यहाँ पे भी बी है, और सी के लिए हमको एटलीस्ट फिर थोड़ा रिकवरी आके यहाँ आए। बट आई एम एक्सपेक्टिंग इट टू गो एटलीस्ट 80% आफ्टर दिस टोटल फॉल। 80% आ जाता है आपका नजदीक नजदीक 7220 और 7198। तो हमें एक डाउन मूव देखने को मिलेगा इन केस ऑफ बजाज फाइनेंस। सो लुक फॉर सेल सेटअप ओनली, नॉट टू बाय एज ऑफ नाउ। तो आसपास 7000 के आसपास अगर मिला तो अच्छा सपोर्ट एरिया है हमें एट 7000 और 6800, 7000 एंड 6800। ओके, सो प्लान योर ट्रेड अकॉर्डिंग टू दैट। HDFC बैंक, तो हमें ये मैं हमेशा बताता हूँ कि आपको चार्ट पे पहले दिख जाएगा न्यूज। न्यूज जो भी है या न्यूज क्या करने वाला है, रिजल्ट पॉजिटिव है नेगेटिव है। तो अर्लियर हम यहाँ पे इस सपोर्ट था यहाँ पे, तो हम बाई प्लान कर रहे थे टुवर्ड्स 1721। ठीक है, एज पर हम जो हमारा अर्ली टाइम फ्रेम्स है वहां, राइट। अगर आप टोटल मूव कैलकुलेट करते हैं या टोटल मूव देखते हैं, जैसे अभी बजाज फाइनेंस में हमने देखा है, तो क्या था, ये हमारा डाउन साइड मूवमेंट था, राइट। इसके अकॉर्डिंग ये डाउन साइड मूव हो गया एक। नहीं तो एटलीस्ट अगर आप छोटे टाइम फ्रेम पे कंसिडर करते हो, तो ये हमारा डाउन साइड मूवमेंट था, ये हमारा अपसाइड मूवमेंट था। हम बाय में थे किस इसके लिए, क्योंकि टाइम ये फास्टर जा रहा था। बट अचानक रिजल्ट उसका थोड़ा खराब है, मतलब एक्सपेक्टेशन से खराब है, ऐसे नहीं कि खराब है, एक्सपेक्टेशन से खराब है, तो हमें एक डाउन साइड मूव देखने को मिला। अभी ये चैनल हो जाता तो इसका इनसाइड भी आ गया ये, और अभी डाउन नहीं जा रहा। तो अगला क्या हो सकता है इसमें, देखिए मैं अगेन सिमिलर कॉन्सेप्ट, यहाँ से टाइम और यहाँ से टाइम, ये में हमने स्टार्टिंग में थोड़ा आपको डिफिकल्ट हो सकता है कैसे कंसिडर करते हैं टाइम। बट सिंपल है कि लो से हाई जो मिनिमम आप देख रहे हो, जैसे अभी यहाँ पे आपको चार्ट दिख रहा है, तो इस चार्ट में जो आप देख रहे हो, ये जो ये लो है और ये हाई, इसको ये आप मार्क कर दीजिए। फिर यहाँ से ये जो फॉल है ये शार्प और 45 डिग्री के एंगल से पहले हो सकता है हमें और थोड़ा फॉल देखने को मिले HDFC, if it is closing below 1460, तो towards 1320। नहीं, ये शार्प डाउन साइड है, तो एक और हो सकता है कि यहाँ पे ये रिट्रेसमेंट जो है ये फास्ट है, तो थोड़ा बहुत रिकवरी मिले। अगर स्लो मिल रहा है तो फिर हमें एक और डाउन देखने को मिल सकता है। तो ये रिकवरी कब तक होगी, 50% तक या 61% तक, दैट इज 1560 और 1600। विजुअली आई एम टेकिंग इट। करीब यहाँ पे दो ही वेव लग रहा है मोस्ट ऑफ द टाइम। अगर सी फास्टर होता है या सी फास्टर होता है, दे गो यूजुअली 61% इज मिनिमम एंड 80% दैट माइट गो। ठीक है, अगर लो ब्रेक नहीं होता है तो वील प्लान दिस, अगर लो ब्रेक होता है तो वील प्लान दिस। ओके, राइट।
HUL पे एक इंटरेस्टिंग स्ट्रक्चर बन रहा है, डायमंड शेप और डायमीटर पैटर्न। यहाँ पे इंपॉर्टेंट होता है, यहाँ पे अगर ये ब्रेक करता है दिस लेवल दैट इज 2451, हमें डाउन साइड देखने को मिलेगा। नहीं, अगर यहाँ से रिकवरी करती है तो अप साइड देखने को मिलेगा। ऐसा स्ट्रक्चर हमें एक LIC फाइनेंस में मिला था, तो आई वुड लाइक टू शो दैट। LIC फाइनेंस नहीं, LIC शायद, या LIC, या यू कैन सी दिस, राइट। सिमिलर काइंड ऑफ स्ट्रक्चर। यहाँ पे देखिए ये जो लेग है ऊपर से है, अभी ये जो स्ट्रक्चर बना है ऐसे, फिर ये ऊपर गया। यहाँ ऐसे हो सकता है या ये डाउन जा सकता है। अगर ब्रेकआउट यहाँ से मिला तो अपसाइड, यहाँ से मिला तो डाउन साइड, राइट। तो सिमिलर स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है इन केस ऑफ हिंदुस्तान यूनिलीवर। तो यहाँ पे ये दो पॉसिबिलिटीज है, जैसे ये गया और इसके बाद डाउन और ओके, ट्रेड द स्ट्रक्चर्स। ICICI बैंक, हार्ले पे क्या चला, जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया था कि ये जो यहाँ पे एक हेड एंड शोल्डर की स्ट्रक्चर बन रहा था पहले, ये हेड, राइट। यहाँ पे लोग मोस्टली सेल पे ट्रेड करेंगे, बट आई सजेस्टेड कि ये फेलियर होने का चांसेस ज्यादा है, क्योंकि ये फोर्थ वे में, ये फिफ्थ में नहीं। तो फिफ्थ में अगर होता तो हम एक फॉल एक्सपेक्ट कर सकते थे, बट देखिए यहाँ पे फिर डाउन आया, फिर थोड़ा गया, फिर रिकवरी, फिर इधर कोशिश किया कि डाउन आने का, फिर से रिकवरी। तो यहाँ पे आपको मिनिमम 80% ऑफ द थर्ड वेव का जो करेक्शन है, ठीक है, थर्ड वेव का करेक्शन का मतलब है, जैसे सब हटा देता हूँ। थर्ड वेव का करेक्शन का मतलब यहाँ से लेके जो अपसाइड आता है मेनली, अभी ये एक्सपेंडिंग ट्रायंगल के जैसा कुछ स्ट्रक्चर बन रहे हैं, ठीक है। नहीं तो मिनिमम ये 80% का होता है 1030 या 1031, या उससे भी ऊपर जा सकता है 1060 एंड 1070। सो लुक फॉर बाई इन केस ऑफ ICICI बैंक, नॉट टू सेल एज, ओके। इन्फोसिस, इन्फोसिस में भी देखिए ये था पहले हमारा प्लान कि 1600 एंड 1640 तक आप होल्ड करें इसको। वी वेर मे बी एट दिस दिस लेवल 1480 के आसपास या 1490 के आसपास, हमने बोला था कि यहाँ ये एटलीस्ट नियरेस्ट जो टॉप है यहाँ पे 1600 तक या 1640 तक जा सकता है, ठीक है। तो 1660 वाज अ हाई, फाइन। तो अभी क्या होगा इसमें, ठीक है। अभी आप देखो ये जो फॉल है, अभी मैं रिसेंट फॉल इसको ही कंसिडर कर रहा हूँ फ्रॉम द लेवल 1680 और 1674, अभी यहाँ पे है। तो ये थोड़ा स्लोअर है, ये मुझे थोड़ा खनकती है। तो ABC ये जाता है तो फिर से एक डाउन साइड मूव हमें देखने को मिल सकता है इन केस ऑफ इन्फोसिस, क्योंकि ये स्लो हो सकता है, थोड़ा बहुत करेक्शन आए, फिर हमें एक रैली देखने को मिले, ठीक। तो मैं अभी थोड़ा कॉन्शियस हूँ इस लेवल पे, क्योंकि यहाँ पे एक हमें रेजिस्टेंस या थोड़ा डाउन मूव मिल सकता है टुवर्ड्स 1400 और 1500 तक। तो वो देखेंगे वो कैसे जाते, तो थोड़ा बहुत ऊपर जाके फिर से हमें एक डाउन साइड मूव देखने को मिलेगा इनके साथ इन्फोसिस। तो प्लान योर ट्रेड अकॉर्डिंग टू दैट। ITC, ITC स्ट्रक्चर में कोई चेंजेस नहीं, तो यहाँ पे आप बाई पे होल्ड कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे देखिए जो डाउन साइड मूव आया था, फिर थोड़ा रिकवरी जो है वो थोड़ा फास्ट है। अम, तो यहाँ से मतलब एक ट्रेंड लाइन से फिर फास्टर अपसाइड हमें देखने को मिला। ये देखिए एक सपोर्ट, दो सपोर्ट, तीसरा सपोर्ट ब्रेक किया, फिर इनसाइड द चैनल मूव किया, तो वन मोर अपसाइड। तो यहाँ पे हमें एक अपसाइड देखने को मिल सकता है, तो 1 2 3 हो जाएगा। तो इसके बाद में हम प्लान करेंगे डाउन साइड या अपसाइड। तो स्लोली स्लोली हमें 488 या 492 इन केस ऑफ ITC दिख सकता है। तो प्लान फॉर बाय सेट। कोटक का क्या हाल है, यहाँ पे क्या स्ट्रक्चर बन रहा है, ठीक है। तो ये इसी जोन में ट्रेड कर रहा है, तो नियर सपोर्ट आए तो फिर एक ऊपर, फिर रेजिस्टेंस पे आए तो फिर डाउन साइड हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे हमें एक ब्रेकआउट स्ट्रक्चर है, ठीक है। देखिए यहाँ पे भी ये ब्रेकआउट मिला इमिडिएटली, और हमें लगता है कि चलो यहाँ से आया, फिर यहाँ से ये सपोर्ट ले रहा है, तो एक अपसाइड मूव बिफोर इट कैन फॉल लाइक 1895 और 1900 पे हमें देखने को मिल सकता है इन केस ऑफ कोटक बैंक। सो लुक फॉर बाय दिस 1830 ब्रेक करता है तो हमें 1860 तक देखने को मिल सकता है।
LNT थोड़ा पावर कट है तो आई गो फास्टर। ये जो स्ट्रक्चर है ये वेज लाइक स्ट्रक्चर बन रहा है, तो आई एम नॉट इंटरेस्टेड टू बाई हियर। तो हमने एक बाई का प्लान किया था यहाँ से, कि थोड़ा टू द टॉप, तो वो हो गया है। अभी हमें एक डाउन साइड प्लान करता हूँ मैं, क्योंकि ये वेज लाइक पैटर्न बन रहा है, तो थोड़ा एक शार्प फॉल हो सकता है। अभी कोई फॉल नहीं, बट थोड़ा बहुत यहाँ पे मिला मुझे, कोई लोअर टाइम फ्रेम से अगर साइन मिला तो मैं प्लान करूंगा इसको डाउन साइड के लिए, मे बी 3530 एंड 3413 इस लेवल पे एंड इस लेवल। ठीक है, रिलायंस, रिलायंस में कोई वीकनेस नहीं है फिलहाल के लिए। हो सकता है ये हमें 2850 एंड 2900 तक देखने को मिले, तो लुक फॉर बाय नॉट टू सेल इन केस ऑफ रिलायंस टू। टीसीएस, टीसीएस का डेली टाइम फ्रेम ठीक है, ये अगेन थोड़ा रेजिस्टेंस लेवल पे है। अभी छोटा टाइम फ्रेम में जैसे अभी हमने डिस्कस किया था शायद, ये जो स्ट्रक्चर है हमें आईसीआईसीआई बैंक में मिल रहा है, या आईसीआईसीआई बैंक में थोड़ा बहुत रिकवरी। और यहाँ पे देखे तो भी वो सिमिलर काइंड ऑफ स्ट्रक्चर है, आईसीआईसीआई में था वो या इन्फोसिस में? एक सेकंड चेक कर लेता हूँ। हाँ, ये जो आईसीआईसीआई में हमने बोला था कि 1 2 3 4 है, तो ये फॉल नहीं करेगा, शायद वन रिकवरी करेगा। तो यहाँ पे देखिए सेम हुआ है। तो यूजुअली अगर देखें तो 1 2 ये 3 4 है, ठीक। अगर कंटिन्यू फॉल कर रहा था, बट इट टुक सपोर्ट हियर एंड वेंट अपसाइड, सो 80% वाज अ मिनिमम, दैट इज 3903 वाज अ मिनिमम। तो यहाँ से हमें एक अपसाइड मिल सकता है छोटा बहुत बहुत, या ये यहाँ से डाउन साइड मिल सकता है, बट 80% वाज अ मिनिमम। तो यहाँ से फॉल करना है तो हमें एक फास्टर डाउन साइड मूव देखने को मिल सकता है इन केस ऑफ टीसीएस। ठीक है, तो यहाँ तो ये डाउन है अभी 1 2 3 4, चलो ये छोटा छोटा कुछ बन रहे, तो यहाँ से ऐसे एक स्ट्रक्चर बना के ये हमें एक डाउन साइड में दे सकता है, या थोड़ा कुछ ट्रेंड लाइन के आसपास जाके फिर हमें एक डाउन साइड में देखने को मिल सकता है। प्लान योर ट्रेड अकॉर्डिंग टू दैट। दिस वीडियो इज मेड ओनली फॉर द एजुकेशनल पर्पस। प्लीज डू योर ओन रिसर्च एंड टेक एक्सपर्ट एडवाइस बिफोर टेकिंग एनी ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग डिसीजंस। अगर आपको कुछ भी इस वीडियो से सीखने को मिलता है तो शेयर अमंग योर फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स। हैप्पी लर्निंग, हैप्पी अर्निंग। टेक केयर गाइस, थैंक यू, थैंक्स लॉट। कुछ भी डाउट है आपको कमेंट कर सकते हैं या व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिए। टेक केयर, बाय बाय।